that I'll show to all of you. Okay, the ATM machine. So is my screen visible properly? Just a moment. Okay, is it visible properly, all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Just a moment. Okay. So we're going to start about the Python. So definitely or not, we are going to discuss about this Python. We'll discuss about this Python. Okay. So first of all, I'll just explain where to use the Python. Okay. Where the Python mostly uses. You can see this type of applications will be there where the Python uses mostly. Okay. Suppose suppose you are a data scientist and you have to learn about the Python and also the machine learning. Okay, the basic thing will be the Python. You can also apply the Python in the web scraping, web application, image processing. Suppose you are converting an image, a colorful image to a black and white image, or vice versa. Okay, in the back end there will be a process. In the back end there will be a process that is called the image process, and Python will also be applicable in that. Okay, we can also apply to make a notepad, to make a word, to make some online gaming, solicitor. Okay, like that. So this type of things we can use in Python. This type of things we can use with Python. We can also use some video, audio application. Suppose you want to extract any type of audio from any video. Okay, in the back end, you have to use Python to extract the video in the back end also. Okay, but in the front end, something like that. Maybe it can be HTML, maybe it can be Node.js. Okay, so this type of applications you can do with. You can also maintain ERP. Okay, with the help of Python. So this type of application you can access with Python. So now how to download a Python? See, there will be many interfaces. You can also download ideally. You can also download Jupyter Notebook. You can also download uh, PyCharm. Anything you can download. But most of the cases we prefer to download the Jupyter Notebook as it is very much helpful. It is very much useful. It is very much soft. Okay, to use. So that's why Python will always be uh, Jupyter Notebook will always be our preference to download. So here you can see the python.org. So this website, you when you visit this website, this type of interfaces it can open. Download Python 3.8.2. Maybe it will be the latest version now. Now the latest version will be the 3.9. Okay. So you have to just click on the download button and it can show you the this type of interfaces. So let us Python 3. Okay. So this type of interface you can face it is for the Windows. It can be for the Linux. It can be for the Mac. Okay. So you can download it. Okay, and lastly you have to the last step will be the install the Python. That's it. You have to click the install button and that's it. If you're stuck any type of problem to download a Python, you just you just write how to in the YouTube how to download Python or how to download Jupyter Notebook, how to download PyCharm, anything. You just have to write in the YouTube. Okay, and it will recommend you many type of applications, many type of videos, and just you have to 2 or 3 minutes maximum. Okay, just a moment. Maybe something. Okay, so there is a queue. Yes, yes, please. So, what is Jupyter Notebook? Jupyter Notebook is one type of interface. You can see this is the Jupyter Notebook. You can see this is the Jupyter Notebook. Okay. Like ideally, you can see this interface is called Yeah. ideally. Okay, this interface is called the ideally. But when this interface is called the Jupyter Notebook, mostly machine learning things or data science things, we'll have to prefer to use the Jupyter Notebook because there will be many functions.
Okay, not like the Jupyter ideally. Python ideally or PyCharm. There will be many functions. So, um, as a machine learning analyst or as a data scientist, you can always prefer the Jupyter notebook. Any type of MNCs you can prefer Jupyter. Okay, Okay. so this is the Jupyter. Sir, is this like a virtual code like No. You have to script the code. You have to script the code. You have to yeah, virtual code is for scripting. yes, you have to script the code. Okay, sir. Okay. So the most popular thing will just write the print of hello world. You can see hello world. We'll have to quote on the hello world, and you'll have to use the print button. So this is called this is the print function. So in the what do you say in the Python, you have to use just only the print function. So print of hello world, it will give us the hello world. Okay. And to print the hello world program in like in C or in Java, you can see this type of things will be there. This type of interface. First, you have to write into .str.h. Then you have to use the printf main function. All the things there will be. Okay, in the Java also you have to use the classes main, void. All the classes you have to use. Argument you have to use. But for Python, you just use the print function, print of hello world. That's it. Okay, so that's it. So that's why the Python is very much soft to use, very much useful. Okay. Okay. Now you can see variable and value. So what is the variable and what is the value? What what any type of anything you can store a value. This is called a variable. You can see x equal to 45. So 45 is stored in the variable x. So this is the variable and this is the value. And I'll just have write x, or rather than in the Jupyter notebook we can write also print of x. Anything you can write. Okay, print of x, or like that this type of x you can write in the Jupyter notebook only. Okay, the output will be the same. Now you can see name equal to DSS, and the DSS will be the non-numeric value. So I'll just quote it down, okay, as it is a non-numeric value. This is called a string value. Age equal to 20. This is the numeric value. This is the integer. And altitude equal to 78.36. This is the also the numeric value, but it is in the float value. Okay. I'll just write print of type of name. So type is another function and print is another function. So print of type of name. So what is the type of the name? You can see DSS. So it will be saying that class is the string, and for age the class will be integer, and for altitude the class will be the float. Okay. So we can write it as a print of type of our variable name. That's it. We can also write hello equal to 100. Okay, so hello equal to 100, this is a numeric value, but we'll have just use the quoted value. Okay, so when I'll just check it out, print of type of hello, it will give us the string value because I'll put it in the quote. So whatever value, we'll just put it into the quote, it will give you the string. Got it? So this type of things will be there. Now I'll just define three variables: name equal to Mac, age equal to 23, academy equal to DSS. Print of name, print of age, print of academy will give you the three values. Okay, Mac 23, DSS. I'll just write print of name comma age. So name comma age will be, name will be Mac and age will be 23. So Mac comma 23. That's it. And when I'll just write print of his name is name. So here name, we have defined it in the previous Mac. So that's why I do not use the code. I do not use the code. And his age is age. So age will be age I have defined already. So that's why I do not use the quote. Okay, I do not use the quotation. So that's why this is the thing, the age. This is called the variable, and for the same for the academy. So here you can see his name is, the name will be Max. So his name is Max. And his age is 23 and learning it is. So that's it. So that's how we can operate any type of variable. Now I have just defined two variables, a equal to 4, b equal to 3. Print of plus a. So plus a will give you plus 4 only. Okay, let me execute first, then execute the next thing. So print of plus a will give you 4, and print of minus b. So minus b will be minus 3. So that's why this output comes. And I have written c equal to a plus b. So a plus b will be 7. 4 plus 3 will be the 7. So our summation, print of our summation c. So our summation will be 7. That's it. Now I'll just have to compare two variables, a equal to b. Is the a equal to b? Yes or no?
So that's why the output will come as false. And this is called A not equal B. So A not equal B is true because A equal to 4 and B equal to 3. So that's why the true value comes. This is called the Boolean value. We know about that. Okay. Now in Java, I can if I want to if I want to input something, okay, input something from any user, so you'll have to write this type of thing. Okay, so I can write this type of thing. You can see track import java dot util dot scanner, all the things you have to define this class void function, all the things you have to manage. But for Python, you have to write just a simple function name that is called the input. So you can see num equal to input, enter any name, any number. So here you can see enter a number will be 45 and print of the number will be 45. So the number is 45. That's it. So this type of thing we can do easily in Python. Now I've just defined one variable that is number equal to 6. If number greater than 5, print success. So 6 will be greater than 5. So first it will execute number equal to 6. If number greater than 5, that means if 6 greater than 5, it will go into the if loop and it will simply print success. So that's why the output will be the success. Now, if I'll just define number equal to 20, if number greater than 5, print success. So number 20 is greater than 5. So print of success will be, it will be obvious that print of success. But if I have just defined number equal to 2 less than 5, so it will not go into that part. It will go into the else part. So, and it will give you the print of that check again. That's it. So this is the if else statement. This is called the if and this is the else statement. And there will be another thing the Python added that is called the elif statement. If elif statement. Elif means else plus if. So elif will be the part. So you can see choice equal to integer of input. So integer of input means what the input is. We'll have to convert the input into the integer. So choice equal to integer of input, enter your choice. So you can see this is the input value. So I have just given the input value will be 4. And apart from that, you can see I just use the condition if choice equal to 1, print admin. That means if the 4 will be equal to 1, it will get print admin. Elif, otherwise, choice equal to 2, print editor 2. Elif, choice equal to 3, print editor 2. Else, print wrong entry. Okay, so 4 equal to 1, it is not true. So it will go into this part. It will also not satisfy this condition. It will go into this part. It will also not satisfy this condition. So it will go into the last part and it will simply print the wrong entry. That's why print of wrong entry will come as. Okay, so this is the if elif statement. Now, I have just given a list of numbers. Number equal to 1 to up to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 9. And when I'll just have to pick up each and every value of the number, I'll have to use the for loop. Okay, I can use the for loop. So you can see for I in number, that means I will go each and every value of the number, each and every value of the number. Print of I. Okay, so print of I will be there. So print of I, that means it will give you print each and every value of I. And lastly, it will simply print the space. So first I in num, that means I will go first 1. So I equal to 1 and it will simply print 1. So 1 comes. I equal to 2 in the next term. So 2 will be the next term and print of 2 will be in the next position. So that's how we can write it will come as 1 to up to 9. We can also write it as for I in range 1 comma 12 comma 1. That means it will start from 1 with the step value 1. That means 1, 2, 3, 4 up to 11, not the 12. This is the Python statement. Okay, up to 11 we can use and print of I. So I first value will be 1 and print of I, print of 1 will be 1. I equal to 2, print of 2 will be 2. I equal to 3, print of 3 equal to 3. So this type of things we can do easily with Python with the help of for loop in Python. Same thing we can do with while loop. While loop, when we just use the while loop, we'll have to use this type of things.
You can see first we have to initialize thing, then while there will be a condition, there will be some actions or statements, and last we have to increment the value. Okay, so you can see count equal to 1. That means this is the initialization. While, so you have to use while condition. So the condition will be count less than 9. That means up to 9, up to 8, up to 9 or less than 9, we can, it will just simply print 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, how the increment goes, you can see count equal to count plus 1. So count equal to count plus 1. And lastly, you have to print the count. So when you just execute it, you can see 1 to 8 count. So this is the while loop. Now the next thing, that is Python indexing. You can see Python indexing. That means always remember the Python starts with the value 0. That's it. Python starts with the value 0. So you can see a equal to hello world. So this is our string variable. Okay, print of a of 6. That means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So W will come. You can see W has come. So that's how an indexing operates with Python. But remember, indexing will start always from 0 in Python. Now, the nested loop. Nested loop means there will be a loop inside another loop. This is called a nested loop. Okay. So I have to print 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. So how can you print this type of matrix? So there will be two things. One is called rows and another is called columns. So for rows, there will be I variables, and for columns, there will be J variables. So first of all, we have written for I in range 1, comma 4. That means it will start from 1 up to 3. So you can see 1, 2, 3 will be there. And for same J, for J in range 1, comma 4, that means 3 columns will be there. So it will be ranging from 1, 2, and 3. So 1, 2, and 3, ranging from 3 columns. Okay, so 3 rows and 3 columns. Print of I into J. That means I have written I into J, 1 into 1, 1 into 2. So this type of things we can do. 1 into 1, 1, 1 into 2, 2, 1 into 3, 3. So 2 into 1, that means 2. You can say 2 into 2, this is the 4. 2 into 3 will be 6. So this type of things we can do with the help of nested loop. Okay, so this is called a nested for loop. Just a moment. Okay, now break statement. You can see number, this is a list of numbers. Numbers equal to 10, 40, 120, 230, 20. I have written a for loop for I in numbers. I want to pick each and every value I in number. That means I equal to 10, I equal to 40, and everything. If I greater than 100. Okay, if I greater than 100. I greater than 100 means, so what is the value of first I? That is 10. Okay, so I greater than 100, I have written break. So I greater than 100. So first of all, I value will be 10. So is this condition satisfying? 10 is not greater than 100. So it will not go into the loop. It will go out of the loop and it will simply print current number is 10. Now it will go again into the for loop, and I updated I value will be 40. So it will not also satisfy this condition. It will go into the print function and it will simply print the value 40. But for 120, it will simply it will simply satisfying this condition. So it will go into the loop and it will simply break the journey. That means it will terminate the loop. So that's why only two values has been printed. Now, another thing will be the continue part. That means I have written numbers equal to 2, 3, 11, 7. Okay. So for I in numbers, that means I value will be 2, 3, 11, 7. Print current number is I. So first it will just simply print the value 2, 3 like that. If I greater than 10, I greater than 10, I'll just written break. But instead of break, I'll write the continue. Okay, first I'll just write the break function. So if I greater than 10, that means for 2 and 3, it will satisfy this condition. Sorry, it will satisfy not this condition. It will simply print the square and print of square. It will simply print. So that's why current number is 2, 3, and the square values, it has been printed. And for 11, it will go into the loop, but it will not satisfy this condition. It will satisfy this condition and it will simply go into the break and it will terminate the value.
This is the break function. But instead of break, when I'll just write the continue function, what will happen? Continue function, that means it will simply skip the value. You can see current number is 11. That is fine. But when it will satisfying this condition, it will skip the value for this. It will skip this square for this 11. It will skip. But for 7, it will go again as it is as it is satisfying the condition. Okay, so this is the continue thing. This is the continue thing. That means it will go continuously, but for break, it will simply terminate the loop. Now the strings. So you can see, I'll just write a equal to hello world in between the quote. Print of a will be hello world. Okay, so this is called the string when it will be into the quotation. A equal to 10. So class print of type of a, the string. I just define data space as a variable. Value will be the same, that is data space. For x in data space, print of x. So it will give us each and every value. So x will be in the data space. That means this x will come into D. X will go again A, then T, then A, then A. So like that, and it will simply print the data space. String one equal to John Deep Beta, and I just slice the value string one 4 to 7. That means what does this mean? It means it will start from 4 and it will go up to 6, not the 7, with the value of incremented value 1. It means 4, 5, and 6. So three values will be there. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So DIP will Hello, be sir. there. Yes. Can you continue in Hindi or Bengali? Okay, but most of the students will be in the English. So just I'm just asking each and everyone that are you comfortable all in Hindi? But sir, Yes, Yes, sir. Hindi or slowly. Bengali? I'm But sir, slowly. One by one by You're one. very fast, sir. हाँ sir. That is Very my fast, point. Okay, sir. okay, Sir, this okay. is our first Python class. We are just Hindi, a sir. Hindi. Yeah, beginner. sir, past Python class. So I don't understand. Okay, okay, okay. So I'll just continue in the Hindi. Okay, sir. Yes, sir. फिर Yes, भी sir. हिंदी में आओ. Okay. Okay. So मतलब string one equal to this type of strings will be there. मतलब हम लोगों को ये कोट में लिखना पड़ता है स्ट्रिंग को, ठीक है? स्ट्रिंग वन 4 to 7 मतलब क्या होता है? ये 4 से स्टार्ट होगा, 7 तक नहीं जाएगा पाइथन में, 6 तक जाएगा, ठीक है? 4, 5 एंड 6. तो हम लोग जानते हैं कि पाइथन का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो DIP. तो आउटपुट DIP आएगा. तो ये आ जाएगा आउटपुट, ठीक है? ये हो गया स्ट्रिंग का. चार चीज होता है. एक होता है पाइथन का लिस्ट, एक होता है डिक्शनरी, एक होता है टपल और एक होता है सेट. तो लिस्ट क्या होता है? जब हम लोग कोई थर्ड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो उसे कहते हैं लिस्ट. थर्ड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखेंगे तो उसे कहेंगे लिस्ट. जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने डिफाइन किया माई लिस्ट टू इक्वल टू 1 to 3. सो ये आ जाएगा एक लिस्ट के अंदर. प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ माई लिस्ट टू. तो माई लिस्ट टू में क्या आ जाएगा? प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ माई लिस्ट टू, मतलब टाइप पूछ रहा हूँ तो टाइप क्या आ जाएगा? क्लास ऑफ लिस्ट. प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ टू. तो टू क्या आ जाएगा? मतलब इंडेक्सिंग, दिस कॉल्ड द इंडेक्सिंग. तो क्या आ जाएगा? 0, 1, 2. तो इसका आउटपुट 3 आ जाएगा. हम लोग जानते हैं पाइथन इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है. मैंने यहाँ पर और एक डिफाइन किया माई लिस्ट 3 इक्वल टू 1.0 रीड एंड 3. यहाँ पर मैंने प्रिंट किया प्रिंट माई लिस्ट 3. तो यहाँ पर क्या दे देगा हमको? ये सिर्फ ये लिस्ट के रूप में दे देगा. तो यहाँ पर देखो 1.0 रीड एंड 3 ये आ जाएगा, ठीक है? और एक चीज, जैसे कि यहाँ पर देखो माई लिस्ट इक्वल टू 1 to 3 मैंने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसका कितना वैल्यूज है ये मुझे नहीं पता. तो हम लोग इसको जान सकते हैं लेंथ फंक्शन के थ्रू. मतलब इसका लेंथ कितना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ माई लिस्ट. तो लेंथ में क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 3. तो तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर है तो इसका लेंथ आ जाएगा 3. ये देखो 3 आ गया. तो ये आ गया लिस्ट के लिए. सिमिलर थिंग्स मतलब एक ही चीज होता है टपल्स के लिए भी. जैसे यहाँ पर देखो मैं जब यहाँ पर लिस्ट में हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग जब
फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे तो उसे कहेंगे टपल, ठीक है। जैसे नंबर टपल इक्वल टू 10, 20, 25.75, प्रिंट ऑफ नंबर टपल। तो नंबर टपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तीनों नंबर टपल में आ जाएगा, ठीक है। 10, 20, 25.75, तो ये हो गया टपल। यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अगर टपल के लिए ऑपरेशन को हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेशन को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया ए टपल इक्वल टू ये 10, 20, 30, 40 एंड 50। मैंने लिखा ए टपल इक्वल टू ए टपल ऑफ कोलन कोलन -1। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोलन मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट होगा, दूसरा कोलन का मतलब होता है एकदम एंड पे खत्म होगा, और -1 का मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और ये जो ए टैपल ऑफ कोलन कोलन -1, इसको मैंने डिफाइन किया ए टैपल में, सेम चीज में। और प्रिंट ऑफ ए टैपल में क्या दे देगा, हमको ये टैपल दे देगा। तो एज यहाँ पर देख सकते हो -1 लिखा हुआ मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से, एकदम शुरू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 50 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। तो यहाँ पर देखो 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सबसे, अब ठीक है ना। हाँ हाँ सर, सर। अभी ठीक है, लेकिन हाँ सर, वो ठीक है। वेरिएबल सर, डेटा स्ट्रक्चर ये सब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से चला ठीक गया। है, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, लास्ट में मैं रिपीट कर दूंगा। अब देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होता है, जब हम लोग सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसे कहते हैं डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में एक चीज का खासियत है, जैसे कि मान लो हम लोग तीन चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी में। एक होता है की, एक होता है वैल्यू, और एक होता है आइटम। जब हम लोग यहाँ पर देखो मैंने लिखा पर्सन इक्वल टू नेम रिक, इसे कहते हैं की, और इस की का वैल्यू होता है रिक। ये पूरा का पूरा की वैल्यू जब मिला देते हैं तो इसे कहते हैं आइटम। ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसे कहते हैं एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, ये चौथा आइटम। तो इसीलिए मैंने लिखा लेन ऑफ पर्सन। तो लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसमें प्रत्येक 4 आ गया। अगर मुझे किसी का जेंडर पता करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रिंट ऑफ पर्सन डॉट गेट, मतलब चाहते हैं हम लोग क्या चाहते हैं, जेंडर। इसका जेंडर क्या है, तो यहाँ पर देखो पर्सन डॉट गेट, ये गेट भी एक फंक्शन है। तो गेट ऑफ जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। सेट, सेट में क्या सो होता है, सर जो मतलब हम्म, गेट फंक्शन हमने लगाया तो उसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पर्सन थर्ड ब्रैकेट के अंदर अगर हम जेंडर लिखे तो भी तो मेल आ सकता है, तो यहाँ हाँ पे आ सकता है, हाँ आ व्हाई सकता है, आ वी सकता है, आ सकता है, डॉट गेट फंक्शन। आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। बहुत सारा फंक्शन है, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे एग्जांपल दिखाया, यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन यूज हो सकता है। एक होता है रिमूव फंक्शन, रिमूव फंक्शन भी यूज हो सकता है कुछ भी रिमूव करने के लिए। एक होता है डिस्कट फंक्शन भी यूज हो सकता है, बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। सो मैंने सर जस्ट व्हाई वी यूज डॉट गेट फंक्शन सर? यहाँ पर मैंने व्हाट सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाया, यहाँ पर अच्छा, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाया, यहाँ अच्छा, पर ओके। बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेट, सेट क्वाइट सिमिलर टू डिक्शनरी। जैसे कि यहाँ पर सेट में भी हम लोग सेकेंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेट और डिक्शनरी में क्या फर्क है, फर्क यही है कि सेट में हम लोग की और वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते, की और वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते। सेट में सिर्फ हम लोग वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो सब्जेक्ट इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट के अंदर टैट मैथ 70, 75.25 ये लिखा, और मैंने लिख दिया प्रिंट ऑफ लेन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट लेंथ इज लेन ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लेन ऑफ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। इसमें देखो सब्जेक्ट 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स को, अगर इसको सब्जेक्ट के अंदर और भी एक एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट डॉट ऐड फिजिक्स, ठीक है। सब्जेक्ट डॉट ऐड फिजिक्स एंड प्रिंट ऑफ सब्जेक्ट, ये तुमको दे देगा फिजिक्स, यहाँ पर आ जाएगा। सेट में एक प्रॉब्लम हो, सेट में एक प्रॉब्लम नहीं, सेट में एक खासियत बात होता है, जैसे कि तुम यहाँ पर फिजिक्स तो डाल दिए, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स यहाँ पर भी पहले भी ऐड हो सकता है, मिडिल में भी ऐड हो सकता है, कहीं पर भी ऐड हो सकता है फिजिक्स, ठीक है। एनीथिंग, एनी वैल्यू एनीथिंग यहाँ पर ऐड हो सकता है। ये होता है सेट के एक पॉजिटिविटी।
यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है पूरा का पूरा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, मैंने लिख दिया ओके, मैं यहाँ पर दो सेट डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर मैंने दो सेट डिफाइन किया था, जो कि क्लास 9 एंड क्लास 10 दो सेट था, अलग अलग दो सेट था। ठीक है, क्लास 9 बोल के एक सेट था और क्लास 10 बोल के एक सेट। यहाँ पर दो सेट, तो क्लास वाइज इक्वल टू ये दो सेट है, क्लास 9 एंड क्लास 10। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया, परफॉर्मेंस इक्वल टू सब्जेक्ट यूनियन क्लास वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इक्वल टू दिस, ये सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया और क्लास वाइज यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो मैं यूनियन करना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट और क्लास वाइज के, मतलब ये पूरा का पूरा ईच एंड एवरी एलिमेंट मैं इसका लेना चाहता हूँ, तो इसलिए यूनियन, इसका ये यूनियन का ये सिंटेक्स है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा सब्जेक्ट यूनियन क्लास वाइज, तो यहाँ पर देखो सारा का सारा वैल्यूज यहाँ पर आ गया। मतलब एक यहाँ पर अपडेट होकर फिजिक्स भी आ गया था, तो 1 2 3 4 5, 5 और यहाँ पर 2 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सात का सात वैल्यूज यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यूनियन कर सकते हैं सेट्स का। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं इंटरसेक्शन, सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑल। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं डिक्शनरी में, सॉरी सेट में। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सेट और डिक्शनरी का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि हम लोग सेट में कोई भी की और वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन डिक्शनरी में हम लोग को मैंडेटरी है की और वैल्यू का इस्तेमाल करना। उस जगह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा सेट है, कौन सा डिक्शनरी है। सेट में सर वो रिपीटेड वैल्यू हम नहीं रख सकते, मतलब यूनिक रखना पड़ेगा। लाइक कोई स्ट्रिंग अगर डबल हो गया कोई नंबर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर सेव हो गया तो वो मतलब फ्लोट में नहीं आ जाएगा, रहेगा। नहीं रहेगा। हो सकता है, बहुत सारा फीचर्स है। ठीक है, बहुत फीचर्स है सेट। और मैं सिर्फ एक, मतलब क्या बोलते हैं, ये तो 2 घंटे का क्लास है, तो इसीलिए मैं, मतलब जो जो पॉइंट अच्छा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि लिस्ट और टपल में बहुत सारा चीज में डिफरेंस है, लेकिन मतलब मेन डिफरेंस क्या है? लिस्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं लिस्ट का वैल्यू, जो कि ये हम सर लोग टपल में, म्यूटेबल। यस, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ये नहीं कर सकते। ये एक खासियत है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब लिस्ट को हम लोग कम्प्रीहेंड कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटे में लिख रहे हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने पहले इस्तेमाल किया फॉर आई इन रेंज, पहले मैं इस्तेमाल किया फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ पर देखो आई का वैल्यू 1 2 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, 0 1 2 अप टू रेंज, मतलब एकदम 10 तक आ जाएगा, सॉरी 9 तक आ जाएगा। पाइथन में लास्ट लास्ट वन वैल्यू नहीं आता है, तो 9 तक आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कंडीशन लगाया कि इफ आई ग्रेटर देन 5, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर। आई वांट टू प्रिंट आउट आई स्क्वायर। ठीक है, मैं आई स्क्वायर को प्रिंट कर सकता, तो 0 1 2 अप टू 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन 6 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 6 7 8 9 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आ जाएगा, 6 × 6 36, 7 × 7 49। ओके, ऐसे करके 9 × 9 81 आ गया। तो इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक ही लाइन में हम लोग लिस्ट को लिखते हैं, एक ही लाइन में। ठीक है, एक ही लाइन में हम लोग लिस्ट को लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ, मतलब कोई भी कंडीशन देना हो, कोई भी लूप सिस्टम देना हो, एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। इसे कहते हैं लिस्ट को कॉम्प्रिहेंड करना। फिर आता है पाइथन का फंक्शन। देखो फंक्शंस दो तरह का होता है, एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन मतलब हम लोग जब यूज किया इनपुट, प्रिंट, ठीक है, टाइप, ये सब हो गया इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, ये सब हो गया इनबिल्ट फंक्शन। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब यहाँ पर देखो डेफ मैसेज, तो डिफाइन ये कीवर्ड हमको यूज करना होगा जब हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल ये करना होगा डेफ ऑफ मैसेज प्रिंट वेलकम टू डीएस। और हम लोग जब इस मैसेज को डिफाइन किया, इस मैसेज को यहाँ पर कॉल भी करना होगा। ठीक है, इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर मैंने नहीं डाला, तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं डाला, सिर्फ मैंने प्रिंट किया वेलकम टू डीएस, जब तो इसलिए आउटपुट दे दिया वेलकम टू डीएस। ठीक है,
नेक्स्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर देखो डेफ डेमो नेम कॉमा एज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Hi everyone, please wait. I think there will be some network issue from trainer side, so please wait. हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? Yes. ओके। यहाँ पर देखो डेफ ऑफ इवन इवन नॉट एन, मतलब ये इसका फंक्शन का नाम है, ठीक है। इस फंक्शन का नाम है एन, तो एन इसका पैरामीटर है। तो यहाँ पर देखो इफ एन मॉड्यूलर टू इक्वल टू जीरो, मतलब एन का वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो इवन आउट ऑफ 20, ठीक है, इवन आउट ऑफ 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 का वैल्यू मुझे पता नहीं कि 20 क्या है, तो इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है और एल्स में ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। इवन ऑड ये ऐसे करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 20 सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो प्रिंट ऑफ इवन नंबर आ गया, अदरवाइज ये ऑड नंबर पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 ये कंडीशन सेटिस्फाई तो इवन नंबर पे आ गया, लेकिन मैं जब इसको डालूंगा 21 तो ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये एल्स में चला जाएगा और ये ऑड नंबर पे आ जाएगा। तो ये ऑड नंबर को प्रिंट कर देगा जब हम 21 23 ऐसे ऑड नंबर डालेंगे। मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में जब हम लोग कोई फंक्शन को निकालना चाहते हैं तो हम लोग लाइब्रेरी से निकालते हैं। वैसे भी कोई लाइब्रेरी को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इंपोर्ट मैथ एक मॉड्यूल का नाम है, मैथ मॉड्यूल। तो मैथ से हम लोग एक फंक्शन निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैथ डॉट स्क्वायर ऑफ 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पर देखो मैथ डॉट स्क्वायर ऑफ 5 मतलब क्या होता है, 2.23 होता है। तो स्क्वायर ऑफ 5 मतलब 2.23 हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एक चीज है जैसे कि रैंडम नंबर। रैंडम नंबर में क्या होता है, हम लोग लिख दिया एक मॉड्यूल का नाम है रैंडम, तो यहाँ पर देखो इंपोर्ट रैंडम प्रिंट द रैंडम नंबर। ओके, सो द रैंडम नंबर विल बी, मैंने इस्तेमाल किया इस फंक्शन का नाम है रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडम, तो यहाँ पर क्या दे दिया हमको, ये दे दिया कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। नाउ ओपी,
ओओपी, ओओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कोई भी क्लास या फिर जब हम लोग क्लास और इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसे कहते हैं, क्लास को इस्तेमाल करेंगे तो इसे कहते हैं ओओपी, मतलब क्लास और वेरिएबल। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट, वेरिएबल रादर देन ऑब्जेक्ट, हम लोग जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट, वेरिएबल नहीं, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ये जावा में होता है, बहुत सारा चीज होता है जावा में। पहले पहले इसका क्लास का डिफाइन करो, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट आउट, ठीक है, पब्लिक डॉट वॉइड, ये सब बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, ये होता है जावा में। लेकिन जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथन में, देखो बहुत कम कोड में ये हो जाता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ, बहुत कम कोड में ये हो जाता है। देखो, पहले हम लोग एक क्लास को डिफाइन करेंगे, जैसे कि क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया, क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पर क्लास क्या आ जाएगा, इसे कहते हैं स्टूडेंट का क्लास, आ क्लास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट का ये क्लास हो गया। उस क्लास के अंदर मैंने कुछ लिख दिया हूँ, दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास विद डेटा। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट का क्लास। इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन को डिफाइन किया, डेफ ऑफ लर्न सेल्फ। इस फंक्शन का नाम आ गया लर्न फंक्शन। जब हम लोग कोई भी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, कोई कुछ भी क्लास हो सकता है, कुछ भी क्लास का नाम हो सकता है, कुछ भी क्लास का नाम हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तब हम लोग इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को, हम लोग को एक इनबिल्ट पैरामीटर देना होता है जो कि है सेल्फ पैरामीटर। ये देना होता है जब हम लोग क्लास के अंदर कुछ भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, प्रिंट ऑफ लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, ये फंक्शन के अंदर भी है और क्लास के अंदर भी है। जब हम लोग फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे थे तो हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्लास को भी कॉल करना होगा क्योंकि क्लास डिफाइंड है, और फंक्शन को भी कॉल करना होगा। तो पहले हम लोग क्लास को डिफाइन करेंगे, जो कि है std। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इक्वल टू स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट का क्लास का नाम है student। और जब हम लोग इस क्लास के थ्रू इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे std, मतलब ये क्लास का नाम हो गया डॉट लर्न, ये लर्न हो गया फंक्शन का नाम। ठीक है, जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। तो ऐसे करके हम लोग को क्लास और फंक्शन के थ्रू हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना होगा, जब हम लोग कोई भी क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर एक इनबिल्ट पैरामीटर सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफाइन करना होगा ऑटोमेटिकली, इनबिल्ट है ही। अगर हम लोग सेल्फ डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक एरर दे देगा। नेक्स्ट आता है दो तरह के चीज, क्लास और फंक्शन में दो तरह के चीज होता है। एक होता है इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटली जो मैंने क्रिएट किया फंक्शन को, उसे कहते हैं इंस्टेंस। और एक होता है इनहेरिटेंस। कैसे? यहाँ पर देखो, इंस्टेंस मतलब इंस्टेंटली जो क्रिएट किया मैंने। पहले मैंने क्लास को डिफाइन किया, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये क्लास हो गया। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया जो कि है डेफ शो, तो यहाँ पर सेल्फ ऑटोमेटिकली पैरामीटर आ गया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं और कोई भी पैरामीटर के थ्रू, मतलब यहाँ पर देखो नेम और परसेंटेज दो पैरामीटर है, दो पैरामीटर के थ्रू अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे ये कंस्ट्रक्टर का, जो कि है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ये इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इसलिए हम लोग लिखा डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ कॉमन नेम कॉमा परसेंटेज। ओके, सेल्फ कॉमन नेम कॉमा परसेंटेज। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेम और परसेंटेज का, तो हम लोग को इस्तेमाल करना होगा ने सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज, ऐसे करके हम लोग लिखना होगा जब हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था जो फंक्शन का नाम, जो कि है डेफ शो सेल्फ, इसे कहते हैं इंस्टेंट, क्योंकि मैंने इंस्टेंटली ये क्रिएट किया अंडर द कंस्ट्रक्टर। तो इसलिए हम लोग प्रिंट ऑफ नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड द परसेंटेज इज सेल्फ डॉट परसेंटेज इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिख सकते कि नेम इज नेम, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करना होगा सेल्फ डॉट नेम। और जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, क्लास को जब हम कॉल करेंगे, यहाँ पर देखो std इक्वल टू स्टूडेंट, इस क्लास का जो पैरामीटर्स था नेम और परसेंटेज, तो यहाँ पर नेम और परसेंटेज रिक और 80 आ जाएगा। और
स्टार्ट डॉट शो में शो आ जाएगा क्या, इसका फंक्शन का नाम आ जाएगा, ये फंक्शन का नाम आ गया। तो नेम इज रिक एंड परसेंटेज इक्वल टू 80 ये आ जाएगा। तो इसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और एक और चीज है जो कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जैसे कि बायोलॉजी में होता है हेरिडिटी, वैसे करके हम लोग को इनहेरिटेंस भी निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक इंस्टेंस को क्रिएट किया, इंस्टेंस को एक पेरेंट क्लास के थ्रू और एक चाइल्ड क्लास के थ्रू, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। सेम चीज मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। चाहे जैसे कि यहाँ पर देखो, क्लास ऑफ कार मैंने डिफाइन किया, क्लास ऑफ कार एक क्लास को, डेफ ऑफ कंस्ट्रक्टर इनिट सेल्फ विंडोज डोर्स इंजन टाइप, तीनों मेरा वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया सेट डॉट सर विंडोज। आई हैव अ क्वेश्चन सर। यस, सर इनिट नाम का पहले से कोई क्लास होता है सर? इनिट नाम का पहले से क्लास नहीं, क्लास कुछ नहीं होता, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। सर कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम से होता है? हम्म सर इनिट मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर तो है, मतलब उसका कोई इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है सर? इनबिल्ट है, इनबिल्ट है, इनबिल्ट है ये तो सर मतलब ऑटोमेटिकली। कोई भी क्लास हम क्रिएट करेंगे उसमें मतलब ये लगाना पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल? नहीं नहीं, जब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तुम पैरामीटर्स डिफाइन करोगे तब तुमको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा। मैंने पिछले एग्जांपल में पैरामीटर्स दिया था इसीलिए कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, लेकिन उसके बाद उसके पहले मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया था क्योंकि जो यहाँ पर सिर्फ पैरामीटराइज्ड जो फंक्शन होगा तो वहां पे मुझे इनिट यूज करना होगा। यूज करना होगा। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पर देखो सेल्फ विंडोज डोर्स, यहाँ पर पैरामीटर यूज किया, तो यहाँ पर देखो सेल्फ डॉट विंडोज, सेल्फ डॉट डोर, सेल्फ डॉट इंजन टाइप, सारे का सारे मैंने लिख दिया। और मैंने यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट किया डेफ ऑफ ड्राइव सेल्फ, जो प्रिंट द पर्सन ड्राइव द कार, तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट ऑफ पर्सन ड्राइव द कार, जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका वैल्यू दे दिया कार इक्वल टू कार 4 5 क्योंकि यहाँ पर मैं वेरिएबल दे दिया, इस वेरिएबल का वैल्यू मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग क्लास को जब हम लोग कॉल करेंगे, तो यहाँ पर क्लास को जब हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 5 ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे ड्राइव के थ्रू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार डॉट ड्राइव। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, तो कार डॉट ड्राइव, द पर्सन ड्राइव द कार, ये आ गया। मैं इस इंस्टेंस को एक और जगह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कैसे, यहाँ पर देखो मैंने क्लास क्रिएट किया ऑडी कार, क्लास ऑफ ऑडी कार, मतलब ये देखो ये ऑडी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस कार के थ्रू, मतलब इसे कहते हैं पेरेंट क्लास और इसे कहते हैं चाइल्ड क्लास, क्योंकि ऑडी को डिफाइन कर रहे हैं कार के थ्रू। सिमिलर चीज डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ विंडोज डोर्स इंजन टाइप, यहाँ पर मैंने एक और ऐड पैरामीटर ऐड कर दिया जैसे कि एनेबल एआई। ठीक है, एनेबल एआई मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डॉट इनिट विंडोज डोर्स इंजन टाइप, सुपर फंक्शन का मतलब जब हम लोग कुछ भी सुपर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर सुपर फंक्शन थ्रू ये इस सारे चीज हमको यहाँ पर क्लास के मतलब पेरेंट क्लास में, सॉरी चाइल्ड क्लास में ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने एनेबल एआई को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग को इस्तेमाल करना होगा सेल्फ डॉट एनेबल एआई इक्वल टू एनेबल एआई। एंड लास्टली मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया डेप सेल्फ ड्राइविंग सेल्फ, इसे कहते हैं इंस्टेंस। ठीक है, सेल्फ सेल्फ ड्राइविंग सेल्फ, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट ऑडी सपोर्ट सेल्फ ड्राइविंग, दैट्स इट। तो ये हो गया चाइल्ड क्लास, ये हो गया पेरेंट क्लास, क्योंकि ये चाइल्ड के थ्रू पेरेंट को इस्तेमाल करते हैं। नाउ ऑडी Q7 इक्वल टू ऑडी 5 5 डीजल ट्रू, यहाँ पर देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑडी का। ठीक है, इस ऑडी का, तो ऑडी मतलब ये क्लास का नाम, तो ऑडी 5 5 डीजल और ट्रू, तो यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यूज विल बी, पैरामीटर 4 है तो 4 वैल्यूज डाल दिया। ऑडी Q7 डॉट ड्राइव, तो ड्राइव मतलब ये क्या हो रहा है, इस पेरेंट क्लास को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो कि है द पर्सन ड्राइव द कार, इस क्लास के थ्रू इस क्लास के फंक्शन इंस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑडी Q7 डॉट सेल्फ ड्राइविंग, तो यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग क्या दे देगा हमको, ये ऑडी सपोर्ट सेल्फ ड्राइविंग दे देगा। ठीक है, इसे ऑडी Q7 मतलब इस क्लास के थ्रू इस इंस्टेंस को यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं एक इनहेरिडिटी बैप। इनहेरिडिटी मतलब एक पेरेंट और एक चाइल्ड, इसके थ्रू हम लोग जब जाएंगे तो इसे कहते हैं हेरिडिटी, दैट्स इट। ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऐसे करके हम लोग
कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हैंडल कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कोई भी एरर, ठीक है। एरर मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर तुमने डाल दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, दैट्स इट। ओके, सो यू कैन सी दैट 10 डिवाइडेड बाई 0 मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता यार, 0 से कैसे डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, जीरो डिविजन एरर, ठीक है। जीरो डिविजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। तो यहाँ पर देखो एरर एकदम एरर इंडिकेट कर रहा है पूरा का पूरा c इक्वल टू 8 बाई b में, तो डिवीजन बाय जीरो, तो ये एरर आ गया। इस एरर को अगर हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन क्रिएट करना। मतलब हम लोग इस एरर को कैसे अवॉइड करें, जस्ट अवॉइड, कोई भी मुझे आंसर नहीं चाहिए, बस अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जैसे कि जावा में इस्तेमाल करते हैं ट्राई कैचे मेथड, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड। कैसे, तो यहाँ पर मैंने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b एक ट्राई के अंदर लिख दिया। जब यहाँ पर मैंने और एक प्रिंट कर दिया, प्रिंट द आंसर ऑफ अ ड्राइव ऑफ ए डिवाइडेड बाई b इज c, ठीक है, c आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई b विल बी c, ये मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर जीरो, अगर ये एरर आ गया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग लिख दिया एक्सेप्ट, ठीक है, कुछ इफ एल्स की तरह एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, ये जीरो डिवीजन एरर जब आएगा तो एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, कांट डिवाइड विद जीरो, प्रोवाइड अ डिफाइंड नंबर, दैट्स इट। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखो 10 और 0, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये एक्सेप्ट में ही आएगा। तो एक्सेप्ट में जब आएगा तो ये प्रिंट कर देगा कांट डिवाइड विद जीरो, प्रोवाइड अ डिफाइंड नंबर। तो यहाँ पर देखो कांट डिवाइड विद जीरो, प्रोवाइड अ डिफाइंड नंबर, ये आउटपुट आ जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, इसे कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, दैट्स इट। एक और चीज तुम लोगों को मतलब मैंने जोर मतलब फ्रीक्वेंट बहुत फ्लुएंसी में बोला गया था, ठीक है। दो तरह की चीज, जैसे कि एक ने बोला था मुझको वेरिएबल को बता देना, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो वेरिएबल एंड वैल्यू में क्या होता है, जो भी मैंने स्टोर किया था, जो भी कुछ मैंने स्टोर करूंगा इसे कहेंगे वैल्यू, ठीक है। और जहां पर भी मैं स्टोर करूंगा तो उसे कहेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो इसे कहते हैं वेरिएबल, इसे कहते हैं वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक्स आ गया, हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, प्रिंट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जुपिटर नोटबुक के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो टाइप कैसे, यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल डिफाइन किया था, हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे टाइप फंक्शन का। प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ नेम, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एज, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑल्टीट्यूड। तो टाइप नेम का टाइप क्या होगा, ये नेम देखो कोट में अंदर है तो ये स्ट्रिंग आ जाएगा। ये एक इंटीजर है तो ये क्लास आ जाएगा इंटीजर, और ये फ्लोट में है तो ये फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। और ये हेलो, जो कि इसका टाइप क्या है, ये टाइप ही आ जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये कोड के अंदर, कोड के अंदर जो भी मैं लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग आ जाएगा, जो भी मैं लिखूंगा वो स्ट्रिंग आ जाएगा। यहाँ पर देखो नेम इक्वल टू मैक, एज इक्वल टू 23, एकेडमी इक्वल टू डीएसएस, तो यहाँ पर प्रिंट नेम एज एकेडमी ये सब आ गया। और प्रिंट ऑफ हिज नेम इज नेम, तो यहाँ पर देखो ये नेम मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो इसीलिए ये कोड के अंदर नहीं जाएगा, जो कि वेरिएबल कोड के अंदर, जैसे कि एज, एकेडमी, ये सब हम लोग पहले से डिफाइन किया हुआ है, तो इसीलिए ये कोड के अंदर नहीं जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब बाकी सारा चीज में कोड के अंदर जा सकता है, क्योंकि वही मुझे चाहिए, जैसे कि हिज नेम इज, यही मुझे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कोड डाल दिया। That's it. ठीक है, अब बोलो, और किसी को कुछ भी यहाँ पर मतलब क्या, एनी डाउट एनीथिंग इसके ऊपर, एनीथिंग, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोलो, एनीथिंग। क्योंकि यहाँ इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। एटीएम मशीन का थोड़ा सा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। और मैं एक चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ, ये एक फीडबैक फॉर्म। हाँ बोलो, बट क्या है, नो बट, हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो।
डाउनलोड लिंक मैं जब खत्म हो जाएगा मैं दे दूंगा डाउनलोड लिंक, ठीक है। मैं मैनेजमेंट को दे दूंगा, वो डाउनलोड करके दे। यहाँ पर देखो REC मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। उसके कोई चिंता नहीं होगा। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सबसे, सबके लिए, जो कि है ये, हाँ जरूर मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने एक लिंक को दे दिया, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट लिंक तुमको एक भेज दिया, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, ये है फीडबैक फॉर्म, है फीडबैक फॉर्म का लिंक है ये। और इसको फिलअप करना होगा, नहीं तो तुमको इसका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको जरूर फिलअप कर देना, तो सर्टिफिकेट के लिए, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इस सेशन का। मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। लास्ट में भी एक बार लिंक मैं दे दूंगा। ये मैं अभी तो, सर माई ओएस काली लिनक्स हाउ टू डाउनलोड पाइथन। ओके, लिनक्स देखो मैंने एक चीज बोल दिया कि जब कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होता है कि डाउनलोड कैसे करें, तुम सिर्फ जाकर यूट्यूब में लिख दो हाउ टू डाउनलोड पाइथन इन योर, या sudo apt get इंस्टॉल, ये हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा। अभी फीडबैक दे दो, हाँ दे सकते हो फीडबैक, कोई भी एनीथिंग। और अगर जब तुम स्टक हो जाओगे कोई भी प्रॉब्लम में, जब तुम स्टक हो जाओगे, तो सिर्फ गूगल में या फिर तुम यूट्यूब में लिख दो ना हाउ टू टैकल दिस और हाउ टू इंस्टॉल पाइथन 3 इन मैक ओएस एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसे करके आ जाएगा। बहुत सारा रिकमेंडेशन होता है, बहुत सारा एरर्स आता है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कौन सा सिस्टम में क्या एरर है, ठीक है। तो हो सकता है इसीलिए। सर एक सवाल है, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए क्या विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, डिपेंड करता है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मेरे पास कोई विजुअल नहीं है। ओके, सिर्फ पाइथन ठीक है, चल जाएगा ना? हाँ हाँ एकदम पाइथन। और ट्राई करना कि लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर, ठीक है। सर लेटेस्ट वर्जन वहां पे मैंने चेक किया, दो दिखा रहा है, एक 2.1 एक 3.1, मतलब नो लेटेस्ट नो, वर्जन थ्री 3, थ्री थ्री लेटेस्ट थ्री वर्जन 2, थ्री 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 3 थ्री वाला ना? ओके। थ्री। सो सर, आपने देखा है कि जुपिटर में जो इमेजेस आपने डाला है तो वो आपने कहाँ सेव करके रखा है सर? यहाँ पर देखो जुपिटर में, यहाँ पर देखो मैं, एक मिनट, ये देखो, इसे कहते हैं होम स्क्रीन जुपिटर में, ठीक है। जब तुम जुपिटर ओपन करोगे तो ये होम स्क्रीन तुमको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो यस यहाँ सर, पर मैं नीचे, करता हूँ सर। यहाँ पर नीचे में देखो, मैंने यहाँ पर PNG करके सारा का सारा फाइल सेव किया हुआ वो मतलब जुपिटर जहाँ पे इंस्टॉल है वहाँ पे मैं अगर ये कर दूं, मतलब मूव कर दूं इमेज, तो मैं उसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ तो? है। एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। हम्म। और कोई, एनीवन? हेलो। 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 हाँ, मैं सुमित बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, बोल रहे हो पाइथन डाउनलोड करने से नहीं होगा? तुम्हारा आवाज बहुत कट, मतलब ब्रेक हो रहा है, बहुत बहुत ब्रेक हो रहा है। मैं मैसेज में देख रहा हूँ। हाँ मैसेज में लिख। हम्म। हाँ एकदम एकदम, पाइथन भी बहुत बहुत है। हाँ हो जाएगा पाइथन में, पाइथन में भी एकदम, नो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो मैं, मेरा भी पाइथन है यहाँ पर, ये देखो इसे कहते हैं पाइथन, ठीक है। पाइथन भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि कैसे पाइथन में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। छोटा सा एक प्रोजेक्ट दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, ओके। देखो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, जैसे कि एटीएम मशीन में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर पहले एक ऑप्शन आता है इंसर्ट कार्ड के लिए, कार्ड इंसर्ट के लिए होता है। तो इंसर्ट कार्ड होने के बाद हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। उस ऑप्शन के एक के ऊपर एक के ऊपर और एक क्लिक, मतलब प्रेस करके हम लोगों को डालना पड़ता है कि कुछ भी, मतलब मिनी स्टेटमेंट हो या फिर बैंक बैलेंस हो या फिर कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, कौन क्या बोल रहा है?
feedback the answer. Okay, thank you. ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होता है। प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड देना पड़ेगा इसके बाद में। यस, एटीएम पिन नंबर। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ मेरा पिन क्या है, तो मैं यहाँ पर एक पिन दे दिया 1234। उसके बाद मुझे चार ऑप्शंस दिखा दे रहा है, बैलेंस, विड्रॉ बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस और एग्जिट। ठीक है, पहले मैं इंक्वायरी करता हूँ मेरा बैलेंस क्या है। प्लीज एंट्री योर चॉइस। तो यहाँ पर देखो एंट्री योर चॉइस में 1 आ गया, तो करंट बैलेंस इज 5000। ओके, तो ये तो आ गया मेरा करंट बैलेंस। मैं कुछ विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सपोज मैंने 2000 विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दो पे क्लिक करना होगा विड्रॉ बैलेंस के लिए। क्लिक कर दिया। विड्रॉल अमाउंट कितना, प्लीज एंटर द विड्रॉल अमाउंट। तो विड्रॉल अमाउंट मैंने सपोज 2000 में विड्रॉ करना चाहता हूँ, विड्रॉ कर लिया। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दे दिया 2000 इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, योर अपडेटेड बैलेंस इज 3000। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर तो स्टॉप हो सकते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे डिपॉजिट बैलेंस। तो मैं यहाँ पर 2000 निकाल दिया, 2000 अभी मैं डाल भी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थ्री को क्लिक करना होगा, तो थ्री को प्रेस किया और उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट होगा सपोज 2000 मैंने डिपॉजिट कर दिया। ओके, फिर 2000 निकाल दिया और फिर उसके बाद उसको डिपॉजिट कर दिया। देखता हूँ तो क्या दे रहा है, 2000 इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, योर अपडेटेड बैलेंस इज 5000। सेम थिंग आ गया। यहाँ पर तीनों ऑप्शन मैंने चेक कर लिया और मैं चाहता हूँ, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 4 पे क्लिक कर दिया, तो स्क्रीन विल बी टर्मिनेटेड। ये यही होता है एटीएम मशीन में। तो इसको हम लोग पाइथन में कैसे करें, बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मुझे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, जैसे कि टाइम मॉड्यूल। तो इंपोर्ट टाइम, उसके बाद आया था प्लीज इंसर्ट योर कार्ड। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, प्रिंट इंसर्ट योर कार्ड। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया जे टाइम डॉट स्लिप 5। यहाँ पर देखो टाइम डॉट स्लिप 5 मतलब 5 सेकंड के लिए होता है टाइम डॉट स्लिप। ठीक है, टाइम डॉट स्लिप, एक मिनट रुको, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप मतलब 5 सेकंड के लिए दिया था। अगर कुछ भी मैं एंटर नहीं करूंगा तो यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेट कर दिया, जैसे कि पासवर्ड 1234। पासवर्ड मैंने एक सेट कर दिया, पासवर्ड 1234। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद क्या चाह रहा था, एंटर योर एटीएम पिन। यहाँ पर मैंने एंटर करना था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था पिन इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर एटीएम पिन नंबर। दैट्स इट। ठीक है, एंटर योर एटीएम पिन नंबर। तो यहाँ पर पिन इक्वल टू इनपुट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो यहाँ पर 1234 मैंने डाल दिया था, तो 1234 यहाँ पर मैंने डाल दिया था, आ गया। उसके बाद जब ये इंटरफेस आएगा तो देखता हूँ क्या कर। तो यहाँ पर देखो मैंने और एक चीज कर दिया था, जैसे कि बैलेंस इक्वल टू 5000, ये मैंने फिक्स कर दिया था, कुछ बैलेंस तो होना चाहिए, तो इसलिए बैलेंस इक्वल टू 5000 मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने एक चेक लगाया, इफ पिन इक्वल टू पासवर्ड, अगर ये पासवर्ड के अंदर मैच हो गया, मतलब 1234 आ गया, वाइल ट्रू, मतलब जब तक ये जाएगा वाइल लूप के अंदर, वाइल ट्रू जब तक ये चलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया चार ऑप्शंस, बैलेंस, विथड्रॉ बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस, एग्जिट। दैट्स इट, चार बैलेंस मुझे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ऑप्शंस देना होगा कि कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं, उसके हिसाब से मुझे बाकी सारा चीज निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने ट्राई कर दिया, ऑप्शन इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर योर चॉइस, अदरवाइज प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड ऑप्शन। अगर मैंने यहाँ पर 5 प्रेस कर दिया, अभी 6 प्रेस कर दिया, तो एक्सेप्ट में आ जाएगा ना, तो इसीलिए ये मुझे लगाना पड़ा या ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ऑप्शन को क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे चार ऑप्शन के लिए चार चीजें निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, इफ ऑप्शन वन, इफ ऑप्शन इक्वल टू 1, प्रिंट योर करंट बैलेंस इज द बैलेंस।
इसे कहते हैं फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, एफ मतलब फॉर्मेट फंक्शन। ये स्ट्रिंग में यूज हो सकता है, इसे कहते हैं फॉर्मेट फंक्शन। जब हम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर को एक साथ मिलाएंगे तो हम लोग फॉर्मेट मतलब एफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ योर करंट बैलेंस इज बैलेंस, तो यहाँ पर मुझे बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है, 5000। इफ ऑप्शन इक्वल टू 2, विड्रॉल अमाउंट विल बी इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर द विड्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पर देखो मैंने विड्रॉल अमाउंट भी क्रिएट कर लिया था। कौन कितना चाहिए मुझे? अच्छा 2000। सर, ये एक क्वेश्चन है मेरा जो आपने हम्म, लिखा है, योर करंट बैलेंस इज, बैलेंस। आपने हाँ आपने प्रोसेस में लिखा और उसके आगे, प्रोग्रेसेस में। हाँ और उसके आगे एफ लिख दिया, तो if सर लिख ये दो। मतलब क्या है सर? इसे कहते हैं जब हम लोग यहाँ पर देखो योर करंट बैलेंस इज कुछ लिखना था, ये देखो ये तो स्ट्रिंग आ गया, यस ये सर। तो स्ट्रिंग है, ये तो नॉन न्यूमेरिक, लेकिन बैलेंस तो न्यूमेरिक में है, यस सर। ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग ये इफ मतलब फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करें। जब फॉर्मेट फंक्शन में क्या होता है, जब हम फॉर्मेट फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग जो चीज मुझे न्यूमेरिक है, जो इनबिल्ट यहाँ से आएगा 5000 2000 जो भी आएगा मुझे न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसे हम लोग ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा। यह फॉर्मेट फंक्शन का यूज। सर ठीक फ्लोटिंग है, पॉइंट पे भी ऐसा कर सकते हैं हम? सब के लिए, न्यूमेरिक के लिए, एनीथिंग न्यूमेरिक। ओके सर। ठीक है, तो विड्रॉल अमाउंट तो मैंने दे दिया। उसके बाद बैलेंस को चेक करना होगा, तो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट, जो कि 5000 माइनस 2000 ये किया था। सेम थिंग देखो, प्रिंट एफ मतलब फॉर्मेट फंक्शन, विड्रॉल अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। सेम थिंग, मतलब ये न्यूमेरिक है इसलिए फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल किया। सो इसका अपडेटेड बैलेंस भी मुझे लिखना होगा, तो योर अपडेटेड बैलेंस इज द बैलेंस। ओके, तो ये बैलेंस आ गया। इफ ऑप्शन इक्वल टू 3, तो मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, सेम थिंग, डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू इंटीजर इनपुट, कौन कितना डिपॉजिट मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे डिपॉजिट अमाउंट का बैलेंस क्या होगा, जो कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिटेड अमाउंट। और उसके बाद प्रिंट एफ डिपॉजिट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ये मैसेज भी प्रिंट करता है। हम लोग इस एफ को इस्तेमाल करेंगे जो कि फॉर्मेट फंक्शन, क्योंकि ये न्यूमेरिक चीज है। एंड योर अपडेटेड बैलेंस विल बी द बैलेंस, ये भी सेम चीज दे रहा था। लेकिन एग्जिट में क्या होता है, एग्जिट में हम लोग इफ ऑप्शन इक्वल टू 4, ठीक है, ऑप्शन इक्वल टू 4 मतलब एग्जिट हम लोग प्रेस किया था तो हम लोग यहाँ पर लूप को टर्मिनेट कर दिया था, जो कि मैंने बताया वो क्या ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब वहां पर भी लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा इफ ऑप्शन इक्वल टू 4 ब्रेक। जब हम लोग 1 2 3 4 प्रिंट की जगह अगर हम लोग कुछ भी दिए तो उसे हम लोग एल्स में ले जाएंगे, जो कि रॉन्ग पिन प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, रॉन्ग पिन प्लीज ट्राई अगेन। ऐसे करके एक पूरा का पूरा एटीएम मशीन। और भी यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस डाल सकते हो। ठीक है, मिनी स्टेटमेंट का बहुत सारे ऑप्शन है, ये सब मैंने किया, इसको एक मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन में डाल दिया तो ये मिनी स्टेटमेंट आ गया। और भी बहुत सारा चीज है। तो ये एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, अ, समझ में बहुत इजी होगा, तो इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को दिखाया एटीएम मशीन का। ठीक है, तो ऐसे करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया जा सकता है, ये ऐसे कर छोटी छोटी चीज से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट का। तो अगर कुछ डाउट है तो मुझे बोलो, इफ एनीथिंग डाउट, एनीवन। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो मुझे। सर एक सवाल है, पाइथन के ऊपर क्या दिस इज द ओनली क्लास और भी क्लासेस होंगे? नो नो नो, दिस इज द ओनली क्लास। सर वहाँ पे जो आपने व्हाइल टूल लगाया, मान लीजिए मतलब मैं कुछ वहाँ पे 1 से 4 तक कोई नंबर हम्म देता हूँ, हम्म तो हम्म उसके बाद मतलब व्हाइल टू मतलब उसके बाद फिर से वो प्रिंट करेगा इससे प्रिंट इनको? करेगा, जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पर देखो, मैंने जब एक बार एक ऑप्शन को चूज किया था तो दूसरे ऑप्शन भी आ जा रहा था। वाइल ट्रू अगर इसीलिए लगाया ताकि मुझे बार बार रिपीट करता चला जाए, मतलब मतलब 1 से 4 तक। इनफाइनाइट वहाँ पे हो जाए? एग्जैक्टली, मतलब जितना भी चाहे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, जितना भी चाहे मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ। अगर मैं वहां पर लिख दिया कि जैसे कि यहाँ पर काउंट इक्वल टू एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, काउंट इक्वल टू 3,
कि जब हम लोग ये ऑप्शन 2 को 3 बार अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर लूप को खत्म कर दिया, तो वहां पर ऐसे ही लगा सकते हैं हम लोग, ये हमारे ऊपर है। इस वाइल ट्रू का मतलब जितने भी चाहे मैं इनफाइनाइट कर सकता हूँ, ठीक है। और कोई एनीवन? सर वो फीडबैक फॉर्म एक बार दोबारा भेज दीजिएगा। एग्जैक्टली, मैं दे देता हूँ, एक मिनट। ये देखो मैंने फीडबैक फॉर्म दे दिया, और इसको जरूर फिलअप करना, क्योंकि अगर ये नहीं फिलअप करोगे तो सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा आज की क्लास का, ठीक है। और हाँ, मैं डाउनलोड का एक लिंक दे दूंगा डाउनलोड का, ठीक है। अभी नहीं, मतलब ये प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो मैनेजमेंट से दे देगा तुमको, ईच एंड एवरी वन दे देगा तुमको। डाउनलोड किया कैसे किया जा सकता है सब कुछ मैं वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन प्रोसेसिंग होने में 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है। सर पाइथन में सर कैसा करियर है, मतलब कौन कौन सा फील्ड में मैं देखो मतलब। पाइथन में अपकमिंग जो फील्ड है वो है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, दैट्स इट। अपकमिंग जो फील्ड है एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। और अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर कंपनीज है पाइथन के लिए, ठीक है। लेकिन ऑलवेज प्रेफरेबल है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, पाइथन में, जो कि अपकमिंग। ओके सर। एनीवन? एनीवन, एनी डाउट? अगर अगर किसी के, हाँ मतलब किसी को अगर कोई भी डाउट ना हो तो आज का सेशन एंड करेंगे यहाँ पर। तो अगर कोई डाउट हो तो बोलो, चैट बॉक्स में भी यहाँ पे करिए। यस, थैंक यू। ओके सो, हाँ बोलो, क्या बोलना, कोई भी बोलना चाहते हो बोलो। सर अब डेटा साइंस, मतलब आप डेटा साइंस लेके अभी सर जॉब कर रहे हो या फिर ओके। मशीन लर्निंग? कौन? आप हो सर? मेरा मशीन लर्निंग है। अच्छा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और एआई दोनों। हेलो सर। हाँ बोलो आकाश। सर वो आप जो प्रोजेक्ट देने वाले थे वो आज दोगे या फिर कल? मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ओके। ओके सो एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। ऑल ऑफ यू वेरी मच थैंक यू, Thank you ठीक so है। much, sir. थैंक यू यस यू कैन गो। थैंक यू आई एम एंडिंग द सेशन। Thank you, sir. थैंक यू।